आमी आसा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हांगासर आनी आमी जाणा की गोवन सेक्शनाची फिल्म्स हांगासर दाखयतात. पयल्या फावट जेन्ना गोवन सेक्शन सुरू जाल्लो त्या वेळाचेर सुरवेक 4 ते 5 एंट्रीज आसल्यो. फाटल्या वर्सा 6 ते 7 आमकां एंट्रीज पळोवपाक मेळ्ळ्यो. ह्या वर्सा आमकां कळ्ळें की 24 एंट्रीज टोटल येयल्ल्यो आनी भितरल्यो 14 एंट्रीज सिलेक्ट जाल्यो. त्या पैकी एक मुवी जो मेमरीज ऑफ मेंजी फेरा हो डॉक्यू फिल्म आमकां पळोवपाक मेळटा. तेचे डायरेक्टर आमच्या वांगडा आसा हिमांशू सिंग. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. वेलकम टू आवर प्रोग्राम. Thank you very much. Thanks a lot. This is your consecutive 4th year of for IFFI. How has been the experience so far? Yeah, it has been a very wonderful experience since now it has become like a tradition coming to IFFI with a film and working with the same team again and again, presenting the film and getting it premiered at IFFI. So it gives a lot of boost to all the young filmmakers who are working along. So this time also we thought, okay, we'll bring one film which is a very different kind of film, which is a kind of a blend of documentary and fiction. So both the styles, we have tried to blend it together and we have experimented it in a way so that it doesn't look like entirely fiction and it should not look like entirely documentary. So this is like a kind of experiment that we have done this time. Okay. The film is about a tree. So how you managed to document it, or how you managed to collect the documents of the film? Yeah, actually, a lot of people are very much connected to that tree, and who are also very close to us. Like they are in our friend circle and all. So when we got to know that the tree has been uprooted because of the heavy rains, so everybody was sharing stories on social media. They were writing very nostalgic notes about that particular tree, and we also had a kind of memory with the tree because there was one film called Ardo Dis, which is half day. We shot at the same tree. So we also had that connection, and we also felt sad. Okay, this was a location that we had shot at, and now it's no more there. So we thought, okay, we will try to document it. We'll try to use all the nostalgic memories that people have associated with it. And so a lot of people from Diwar, actually my producer Alisha manager, she helped me a lot. She connected me with different families who are living in Diwar Island and who have the memory with that particular tree. And also a lot of people from media, a lot of people who are research scholars here, a lot of people who are into wildlife and environment. These people also, there is a guy called Marius Fernandez. He helped us a lot and he has so much knowledge about Diwar Island and this particular tree. So we took his bites, we took the documents that he had with him, and we used some of the footages which are very rare and they have a value of the heritage for particular Diwar Island. So we used all those footages also and tried to make it into a very interesting and experimental film. How many characters are there? Yeah, there are actually, what we try to do is that हर किसी की एक मेमोरी होती है. वो बचपन से लेके बड़े होने तक आपका वो पेड़ के साथ एक कनेक्शन रहता है. ये अलग बात है कि बड़े होने के बाद आपको इतना वो याद नहीं रहता, बट जब वो चीज़ वहाँ नहीं होती है, देन यू रियलाइज़ कि यार मेरे साथ इसकी कितनी यादें जुड़ी थी, मेरे साथ इसके साथ कितने मोमेंट्स मैंने शेयर किए थे, इस पेड़ ने मेरे साथ कितने मोमेंट शेयर किए थे. तो हमने अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, जो अलग अलग जगहों पे दीवार आइलैंड के रह रहे हैं, उन लोगों को लिया, जिसमें कुछ यंग लोग हैं, 20s में हैं, कुछ 30s में हैं, कुछ 50s में हैं, एंड एक ग्रैनी हैं, वो उन्होंने भी अपने मेमोरीज उसके साथ शेयर किए. ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था कि होलिस्टिक अप्रोच लगना चाहिए, कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग लगने चाहिए, अलग अलग जगहों के लोग जिनका उस ट्री के साथ कनेक्शन है, उनका हमको एक डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए. कितना समय लगा सर फिल्म बनाने के लिए पूरा? देखिए, रिसर्च तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था, जुलाई में जब ये मतलब ट्री अप्रूव हुआ था, उसके बाद से हम शुरू कर रहे थे, और वो प्रोसेस जो है वो ऑन शूट से पहले शुरू हो गया था, बट ऑन शूट हमने इसको 3 दिन में इसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है, एंड फिर कुछ फिक्शन पार्ट वो हमने 2 दिन में किया. तो ऑलमोस्ट ये 5 डेज़ का शूट रहा, जिसको हमने फिर बाद में इसको एडिट करके डॉक्यू और फिक्शन को मर्ज किया. सर, मैंने जैसे शुरुआत में जिससे बात की थी कि शुरुआत में 4 से 5 एंट्रीज थी, पिछले साल 7 एंट्रीज थी, इस साल हमने देखा कि 27 ऑलमोस्ट थी, उसमें से 14 मूवीज़ सिलेक्ट हुए थे. सो ये गोवा फिल्म कल्चर अभी जनरेट हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे ही पता चलता है कि नंबर ऑफ़ एंट्री जैसे पहले 4 या 5 आती थी, अभी 24 आ रही हैं. इससे पता चलता है कि कितना एक नया अवेयरनेस बना है, और बहुत सारे नए लोग जो है, बहुत सारे फिल्म स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड समवन फ्रॉम गोवा, किसी न किसी डिपार्टमेंट में, डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में. NID का देयर इज़ वन गर्ल, शी इज़ फ्रॉम NID, उनका एक फिल्म यहाँ पर लगा हुआ था कल, नित्या नावेलकर करके, उनका भी एक फिल्म था. इससे पता चलता है कि द टैलेंट इन गोवा, एक्चुअली देयर इज़ सो मच टैलेंट इन गोवा, स्पेशली इन फिल्म मेकिंग एंड ऑल आर्ट फॉर्म्स. बट अभी 24 एंट्री आने का मतलब ये है कि देयर इज़ एन अवेयरनेस एंड देयर इज़ अ न्यू स्कोप ऑफ मेकिंग फिल्म्स हेयर विद द पीपल फ्रॉम हेयर, एंड इस तरह से जितना उसका एजुकेशन भी बढ़ रहा है बाहर की तरफ से. तो और
ये अच्छी बात है कि इफ़ ही हैज़ अ गोवन सेक्शन ऑल्सो, तो ये उन लोगों को भी एक बूस्ट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अगर यहाँ पे फिल्में बनाते हैं यहाँ के लोगों के साथ, तो उनको एक अच्छा प्रीमियर मिलता है एंड वो रिकॉग्नाइज होता है इंटरनेशनल ऑडियंसेस के सामने. सो गोवा हैज़ इमेंस टैलेंट एक्चुअली इन ऑल आर्ट फॉर्म्स. सही है सर. गोवा में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट चैनलाइज प्रॉपरली होना चाहिए. कौन से मूवी के लिए आप काम कर रहे हैं अभी? सी अभी एक लॉन्ग फॉर्मेट फीचर का हम प्लान कर रहे हैं, दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू शूट इन गोवा. तो उसके लिए अभी प्री प्रोडक्शन चल रहा है, वी आर डूइंग कास्टिंग एज ऑफ नाउ. और जैसे ही वो कंप्लीट होता है देन विल शूट इट हियर. दैट विल बी आवर फर्स्ट फीचर डेब्यू फिल्म काइंड ऑफ. इससे पहले बहुत आपने शॉर्ट फिल्म्स की. या शॉर्ट्स एंड शॉर्ट्स. दिस इज डॉक्यू दिस टाइम. इसके बाद फिर फीचर की लॉन्ग फॉर्मेट का तैयारी है. सर आपके अगले आने वाली जर्नी के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप हर साल इफ़ी में आते रहिए. आप हमें मौका दीजिएगा आपका इंटरव्यू करने का. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.